Assalamu alaikum students. Today we are going to learn a poem named If, and it is on page number 87. Before to learn poem If, there is some information regarding the poet Rudyard Kipling. Now Rudyard Kipling was the famous English journalist, short story writer, poet and novelist. Kipling was one of the most popular writers in the United Kingdom in both prose and poetry. In the late 90th and 20th centuries, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. He was the first writer writing in English to receive the prize. Now this poem deals with advice given by father to his son. Now if, हमारे हम अगर बोलते हैं, and जब कभी if, whenever we use if, this word is uses for showing a condition. यहाँ पर जो है कंडीशन बताने के लिए जो है वो if इस तरह से आता है. जैसे हमारे पास में जो हम अक्सर एक बात करते हैं दैट इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट मोर मार्क्स, यानी हमको ज़्यादा मार्क मिलाने के लिए शर्त जो लगाई गई है वो ज़्यादा जो है पढ़ाई करने की. इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट मोर मार्क्स, ऐसा इसमें जो है वो कंडीशन है. नाउ इन दिस पोएम इफ़, फादर इज एडवाइजिंग टू हिज सन. लेट्स सी what he advises to his son. First of all, I'll read the poem. Now it is on page number 87 of our 10th textbook. Come to the poem. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with a triumph and a disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken twisted by news to make a trap for fools, or watch the things you give your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. Now, next page. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither fools nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Now this poem is written by Rudyard Kipling. In this poem, a father is advising to his son. Now what the poet says, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. अच्छा, यहाँ पर वर्ड है keep your head. हमारे यहाँ जो है वो keep head इस तरह से बोलेंगे, keeping head, सर को जो है पकड़ना. But here keeping head means not to get angry. अगर हमारे पास एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पर keep your head, तो हमारे सर को इस तरह से पकड़ के खड़े रहना नहीं. इसका एक दूसरा मीनिंग जो यहाँ पर लिया गया है, और व्हाट डज इट मीन हियर इज अपने आप पर जो है वो काबू रखना.
टू नॉट टू गेट एंग्री, या अपने आप पे जो है वो काबू रखना, गुस्सा नहीं आना. इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you. At times when suppose people are blaming something on you, कि उनका कुछ नुकसान हो रहा है, they are having some problems, loses or something, and they are blaming, they are losing for you, आपके ऊपर जो है उसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. एट दैट टाइम आपको गुस्सा नहीं होने का है, नॉट टू गेट एंग्री. एंड फर्दर द पोएट सेज, इफ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. ऐसा भी होगा, इफ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. सब लोग जब आप पे शक करने लग जाएं, और जब आप जो है अपने आप पे भरोसा कर सकते हो. होता है कभी कभार ऐसा होता है कि डैट पीपल, आम लोग आप पे शक करते हैं. दे डाउट ऑन योर एबिलिटीज, ऑन योर क्वालिटीज, ऑन योर एफर्ट्स, वट एवर यू डू. बट इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम जो है अपने आप पे भरोसा रख सकते हो, but make allowance for their doubting too. अच्छा, making allowance for, consider what others also have to say about something. जब ऐसा होगा कि लोग जो है वो आप पे शक कर रहे हैं और आपको जो है अपने आप पे भरोसा तो रखना है, बट वो क्यों हम पे शक कर रहे हैं, उस पर जो है अपने को गौर करने का. फॉर एग्जाम्पल, सपोज पीपल थिंक दैट आपको जो है वो परसेंट नहीं मिलेंगे, दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मच ऑफ ए मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. और आपने अगर उनको बोला दैट इन द फ्यूचर आई विल बी समथिंग, मैं कुछ बन जाऊंगा, कोई खास है कि आपने जो है वो ड्रीम उनके सामने बोला है, एंड लोगों को लग रहा है कि नो, ये ऐसा नहीं बनेगा. दे आर हैविंग देयर डाउट्स. व्हाई? कि उनको ऐसा लगता है कि डैट यू आर वॉन्डरिंग आउटसाइड, यू आर डूइंग नथिंग. बट इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, नहीं, after going out, when returning to home, you do study. While in school, you pay your attention, you do your homework. आपको अगर आप ऐसा भरोसा कर सकते हो that I am doing, तो आपको जो है ये करना है. एंड इफ पीपल आर डाउटिंग, तो वो जो शक कर रहे हैं आपको उस पर जो है वो थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, थोड़ा उस पर जो है सोचना चाहिए, why they are doubting. If you can wait and not be tired by waiting. कभी ऐसा होता है, if you can wait, अगर तुम जो है वो इंतज़ार कर सकते हो, and not be tired by waiting, और ये इंतज़ार करते हुए आपको जो है वो थक नहीं जाते हो, यानी आपको जो है वो थोड़ा सब्र करना होगा. बी पेशेंस, हैव पेशेंस, बी पेशेंट. आपको जो है वो सब्र करना होगा, इंतज़ार करना होगा. कोई भी चीज़ जो इतना जल्दी नहीं मिलती है. और कभी ऐसा होगा, टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर सक्सेस, एंड यू आर हैविंग द क्वालिटी ऑफ वेटिंग, एंड यू आर नॉट टायर्ड बाय वेटिंग. इंतज़ार करने से आप थक नहीं जाते हो. एंड ही फर्दर सेड, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. ऐसा होता है कि लोग आप पे शक करेंगे या आपके मुतालिक जो है वो झूठ बोलेंगे. और बीइंग लाइड अबाउट, आपके मुतालिक झूठ बोलेंगे. डोंट डील इन लाइज. अगर लोग आपके मुतालिक झूठ बोल रहे हैं तो आपका इसका जवाब जो है वो झूठ से नहीं देने का है. आपको ऐसे वक्त जो है वो थोड़ा इंतज़ार करने का है, वेट करने का है अपनी अपॉर्चुनिटी का. हैव सम पेशेंस, बी पेशेंट व्हेन अदर्स लाइड अबाउट यू. जब लोग आपके मुतालिक झूठ बोलेंगे, व्हेन दे आर टॉकिंग nonsenses about you or wrong things about you, at that time control yourself, be patient, don't behave angry, in angry mood, or don't use such words or wrong words. Or being hated, don't give way to hating. और कभी ऐसा होगा
कि लोग जो है वो आपसे नफरत करने लगेंगे। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। जब आपको जो है लोग आपसे नफरत करने लग जाएं और गिव वे टू हेटिंग, हम भी जो है वो दूसरों से नफरत ना करने लग जाएं। हमारे भी जो है अंदर वैसे एक जज्बा नहीं पैदा कर लें कि हम भी लोगों से जो है नफरत करने लग जाएंगे। ऐसा होता है। दिस इज़ एडवाइस फ्रॉम ए फादर टू ए सन, कि जब लोग आपसे जो है नफरत करने लग जाएंगे तो आपके दिल में भी जो है लोगों से नफरत नहीं पैदा होना है। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। और ऐसा करते हुए भी जो है अपने आप को ऐसा नहीं पेश करना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत जो है वो ज़हीन हूँ। अच्छा, ये लाइन में, इन दिस लाइन वी सी टू वर्ड्स, टू, दिस वर्ड इज रिपीटिंग, टू गुड, और आगे चल करके जो है वो टू वाइज ऐसा आ रहा है। हियर इन दिस लाइन टू, दिस वर्ड इज रिपीटिंग, इट मीन्स दैट द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटिशन। वाई? Two words are repeating in a same line. This figure of speech is called repetition. And yet don't look too good nor talk too wise. यानी हम जो है, जब लोग हमसे नफरत कर रहे हैं और हमारे पर हम काबू रख करके जो है दूसरों से नफरत नहीं करना है, तो एट दैट टाइम हमको ये भी नहीं बताना है मैं बहुत अच्छा हूं। नॉट टू शो दैट यू आर टू गुड, तुम बहुत अच्छे हो, या ऐसा भी नहीं कि इस अंदाज में बात करो कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो अक्लमंद हो, बहुत ज़्यादा आप ज़हीन हो। ऐसा भी हमको जो है वो हमारा बिहेवियर नहीं रखने का है। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स यूर मास्टर। और अगर आप तुम जो है वो ख्वाब देख सकते हो, अब यहाँ पर ख्वाब अगर बोलते हैं तो हमारे ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद, ऐसा एक बड़ा मकसद आप जो है बना सकते हो। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स यूर मास्टर। अगर तुम ख्वाब देख सकते हो, जिंदगी का एक मकसद बना सकते हो, वो मकसद को जो है अपने ख्वाब जो है जिंदगी में कुछ बनने का, अगर तुम वो देख सकते हो, वैसा कर सकते हो, एंड मेक नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और वो जो ख्वाब है उसके तुम गुलाम नहीं बन जाओगे, उसको अपने आप पर जो है हावी नहीं होने दोगे। वो जो ख्वाब है दिन भर जो है वही सोचते बैठने का, नो। अगर आप ऐसा करोगे, यहाँ पर इन दिस लाइन इस तरह से बताया, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स यूर मास्टर, अगर तुम ख्वाब देख सकते हो और वो ख्वाब को जो है वो हमारे मालिक नहीं बनाने का, उसके कंट्रोल में हम नहीं जाने का, उसके हमको गुलाम नहीं बनने का। इन दिस वर्ड ड्रीम को जो है हमारे एक मालिक के तौर पे जो है वो पेश किया गया है, हमारे बॉस के तौर पे पेश किया गया है, हमारे मास्टर के तौर पे पेश किया गया है। इफ सपोज दिस काइंड ऑफ ए थिंग, किसी लाइन में एक शायर पेश करता है, तो यहाँ पर जो है वो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होगा ये पर्सोनिफिकेशन होगा। हमने यहाँ पर इस तरह से हम ऐसे पढ़ रहे हैं, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और ख्वाबों को जो है वो हमारा मास्टर बनने नहीं देने का है। तो ख्वाब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारा मालिक बन जाए या हमारा मास्टर बन जाए, ये तो जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। ऐसा जब कभी होता है, कोई चीज़ जो है शायर इस अंदाज में पेश करता है, इंसानी क्वालिटी उसमें अगर बताता है, तो उसको जो है हम ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन। If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, अगर आप सोच सकते हो, शर्त है यहाँ पर भी, if you can think, अगर तुम जो है वो कोई ख्याल, कोई बात का ख्याल कर सकते हो, कोई चीज़ सोच सकते हो, and not make thoughts your aim, और ख्यालों में खोना यही तुम्हारा जो है वो मकसद नहीं होना चाहिए। इफ़ यू कैन मीट विथ अ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर जिंदगी में जो है तुमको कामयाबी मिल जाए, अच्छा ट्रायम्फ,
एंड डिजास्टर। ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। ट्रायम्फ अगर हम बोलेंगे तो ये सक्सेस को बोलेंगे, कामयाबी को बोलेंगे, एंड डिजास्टर ये तबाही को बोलेंगे, बर्बादी को बोलेंगे, हार को बोलेंगे। हार जीत इस तरह से हम बोलते हैं। इफ यू कैन मीट विथ अ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर आपकी जिंदगी में आपको कामयाबी मिल जाए या आपकी जिंदगी में आपकी मुलाकात जो है वो तबाही से हो या हार से हो, नाकामयाबी से हो, चाहे यही लाइन में, एक ही लाइन में दो वर्ड आ रहे हैं, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। ऐसा जब होगा तो ये सीधा सीधा जो है अपोजिट वर्ड्स हैं, जीत और हार। ऐसा जब होता होगा तो शायर इसमें जो है एक फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है, और वो फिगर ऑफ स्पीच को हम एंटीथेसिस बोलते हैं। व्हेन अ पोएट इज यूजिंग टू अपोजिट वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स इन अ सेम लाइन इज कॉल्ड एंटीथेसिस। यह फिगर ऑफ स्पीच जो होगा उसको हम एंटीथेसिस बोलेंगे। इफ यू कैन मीट विथ अ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर आपकी मुलाकात कामयाबी से हो, यानी जिंदगी में आपको जो है बहुत बड़ा मुकाम मिल जाए, बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको जिंदगी में बहुत बड़ी हार हो जाए, नाकामयाबी मिल जाए। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, जो भी होता होगा, कामयाबी भी मिल जाए या नाकामयाबी मिल जाए, दोनों में से क्या भी मिल जाए, इन दोनों को यहां पर नेक्स्ट लाइन में एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, इनको दोनों को जो है वो इम्पोस्टर कहा गया है। वन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, यानी दगाबाज जिसको हम बोलेंगे। ये दोनों भी जो है कभी भी जो है वो ट्रायम्फ हमेशा के लिए नहीं होता है, डिजास्टर हमेशा के लिए नहीं होता है। तो ये दो जो चीज़ें ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, इनको एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, दोनों के साथ में जो है एक जैसे का जो है बर्ताव कर लेंगे। न ये जो है कामयाबी मिलने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो अकड़ के रहने का है, और जब को अपने को नाकामयाबी मिल जाएगी अपना जो है आपा नहीं खोने का है, गम ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी भर नहीं रहने का है, दोनों को इक्वली ट्रीट करने का है। यहाँ पर भी जो है इन दिस लाइन ऑल्सो द पोएट टू ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ही इज टेलिंग दैट दीज टू आर इम्पोस्टर्स, ये दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। इन्हें धोखेबाज होना ये तो अल्फाज की जो है वो खुसूसियत नहीं होती है, ये किसी इंसान की खुसूसियत होती है। इंसान जो है वो धोखेबाज होता है, दगाबाज होता है। हियर ऑल्सो व्हेन द पोएट सेज दैट एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, यहाँ पर भी शायर ने फिगर ऑफ स्पीच यूज की है, और वो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होती है। इम्पोस्टर, ये पूरी लाइन आने के जब यहां पर आ रहा है तो इसको हम वो पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। हमको सलाह दी जाएगी एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, इफ यू कैन मीट विथ अ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। ऐसा अगर हमको लाइन्स आ रहे हैं एंड यू आर आस्क्ड टू राइट द फिगर ऑफ स्पीच, देन फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जो है इंसानी खुसूसियत वो ये दो चीज़ों को जो है वो दी गई है, ट्रायम्फ और डिजास्टर को बताया गया कि वो दगाबाज हैं। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, आपने जो है जिंदगी में कभी कोई एक सच बात कही है, कोई एक बात कही है, यू हैव स्पोकन, आपने कहीं जो है वो कुछ बात बोली थी, आप कोई बात जो है वो किए हुए थे। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ, आपने जो कुछ बोला था उसको जो है बर्दाश्त अगर आप कर सकते हो, जो भी सच आपने बोला हुआ था। कब? व्हेन ट्विस्टेड बाय न्यूज टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, वो जो सच आपने बोला हुआ था उसको जो है गुलाम लोगों ने क्या किया, या कुछ लोगों ने जो आपके खिलाफ थे या आपके दुश्मन थे, उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ा मरोड़ किया, उसको बदल करके जो है वो जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको जो है वो उसका एक फंदा बना करके जो उसमें जो है वो फांस लिया। यानी आपने जो सच बोला हुआ था वो सच को जो है वो बदल करके उसमें जो फेरफार करके जो है वो लोग जो मासूम होते हैं या जो बेवकूफ़ होते हैं उनको जो है अपने जाल में फंसा लिया। ऐसी जब बात आ रही है और वही आपके सच का जो इस्तेमाल किया था
तो ऐसे वक्त जो है आपको अपने आप पे काबू रखना होगा। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू बी ब्रोकन और टू ब्रोकन, और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स। और वो चीज़ें जिनको बनाने के लिए आपने आपकी पूरी ज़िंदगी लगा दी और उनको ही जो है वो टूटता हुआ आप देखो। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, जिसको बनाने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए आपने अपनी सारी मेहनत लगा दी, सारी ज़िंदगी लगा दी, वही टूट रहा है। ऐसे वक्त क्या करना है? एंड स्टूप, थोड़ा झुकना है, एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स। हमारे पास में जो कुछ भी हथियारात थे, जो भी हमारा तरीका था, जिसको हमने पहले से यूज़ किया है, और उसी को जो है वो दोबारा यूज़ करने का है। और दोबारा यूज़ करके जो है वो चीज़ें जिनको बनाने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी हमने लगा दी थी, दोबारा उसको जो है वो बनाने का है। अच्छा, इन दिस लाइन टू स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स, विथ ये W से शुरू हो रहा है और उसके आगे का जो वर्ड आ रहा है वर्न आउट, ये इस तरह से जो है वो कंप्लीट लाइन हो रही है। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम विथ वर्न आउट टूल्स, दो वर्ड आ रहे हैं W से शुरू होने वाले। तो ऐसा अगर कोई होता है तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ होगा उसको हम अलिट्रेशन बोलते हैं। व्हेन पोएट यूजेस टू और मोर देन टू वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम लेटर एंड हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन, एट दैट टाइम दैट फिगर ऑफ स्पीच इज अलिट्रेशन। वो जो फिगर ऑफ स्पीच होती होंगी उसको हम अलिट्रेशन बोलते हैं। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, जिसको आपने बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है पूरी लगा दी, वही टूट रहा है। ऐसे वक्त में टू बेंड डाउन, झुक जाओ, रुक जाओ, एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स। हमने जो हथियार, जो तरीका हमारा पहले ही का था, जिसको हमने इस्तेमाल किया था, उसको दोबारा इस्तेमाल कर। थर्ड स्टांजा ऑफ द पोएम, नो व्हाट इज इन दिस स्टांजा इज इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू or walk with kings nor lose the common touch, if neither fools nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Now in this stanza, if you can talk with crowds and keep your virtue, अगर आप जो है, father is advising to his son that when you talk with common people, जब तुम जो है आम लोगों से बात करो, while dealing with them, while talking with them, keep your virtue, हमारे बाद में हमारी जो अच्छाई है, तुम में जो एक अखलाक जो हमारे होते हैं, उसको अगर आप बरकरार रखो। वह है when कॉमन पीपल सपोज दे आर नॉट अप टू यू, और उनके साथ जब हम बात कर रहे हैं, यू आर अ गुड पर्सन, सो कीप योर गुडनेस, हैव सम मॉरल्स, यहाँ पर जो है ये नसीहत की गई। और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, जब आप जो है राजा लोगों के साथ में फिरोगे, अच्छा किंग्स हमारे राजा को बोलते हैं, बादशाह को बोलते हैं, उनके साथ में आप चलते होंगे। अब यहाँ पर जो है वो राजा लोगों की बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इट मीन्स दैट जब आप हाई लेवल के लोगों के साथ फिर रहे होंगे, इफ यू आर हैविंग योर कंपनी विथ हाई लेवल पीपल्स, एट दैट टाइम नॉर लूज द कॉमन टच। हाई सोसाइटी में आपका उठना बैठना होगा, एट दैट टाइम जो आम लोगों से हमारे जो ताल्लुकात थे उसको नहीं खोने का। दिस इज एडवाइस फ्रॉम ए लविंग फादर टू हिज सन। जब जिंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की कम कर लोगे तो एट दैट टाइम जब आपका उठना बैठना बहुत ऊंचे लोगों से होता होगा, आम लोगों के भूलने का नहीं है, उनके साथ में हमारा जो रिश्ता होता होगा उसको तोड़ने का नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कामयाबी अगर मिल जाएंगी तो वैसे में जो है हमारे वो लोग या वो रिश्तेदार जो हमने जिसके साथ में जो अपनी ज़िंदगी जो है परवान चढ़ाई है, उनको भूलने का नहीं है। इफ़ नीदर फूज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। अच्छा, फू
दुश्मन को हम बोलें एनिमी। जब कोई ये जो है दुश्मन या आपका कोई करीबी दोस्त आपको सता ना पाए, आपको तकलीफ ना दे, इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, आप सबके साथ में जो है राब्ता रहते हो, यू आर हैविंग टच, यू आर हैविंग रिलेशंस विथ ऑल ऑफ देम, यानी दोस्तों के साथ में भी, दुश्मनों के साथ में भी, या फिर जो है जो हाई लेवल के लोग हैं उनके साथ में भी, गरीबों के साथ में भी। ऐसे वक्त में आप जो है वो किसी को बड़ा या किसी को जो है वो छोटा नहीं समझने का, सबके साथ में जो है वो बराबरी का जो है वो बर्ताव करने का। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अच्छा अनफॉरगिविंग मिनट वक्त के लिए कहा गया है, मिनट हम देखते हैं सेकेंड, मिनट या आर ऐसे होता है। यहाँ पर बताया गया इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, वो वक्त जो दोबारा लौट कर वापस आने वाला नहीं है, जिसको हम भुला नहीं पाएंगे, विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, वो वक्त जो एक दफ़ा चले गया तो लौट कर आता नहीं है। एंड व्हाट डज 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मेक गुड यूज़ ऑफ एवरी सेकेंड विदाउट वेस्टिंग, हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर एक लम्हा जो है, हर एक मिनट को जो है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने का है, उसका जो है वो फ़ायदा उठाने का है, ऐसे जो उसको ज़ाया नहीं करने का है, उसका टाइम पास नहीं करने का है। वंस अ टाइम लेफ्ट नेवर कम्स बैक, वक्त एक दफ़ा के जो चले जाता है कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। दैट इज़ वाई द पोएट एडवाइजिंग और ए फादर एडवाइजिंग टू हिज सन, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर एक मिनट उसको जो है हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, उसको ज़ाया नहीं करने का है। यूअर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, अगर ऐसा तुम करते हो, व्हेन देयर आर कंडीशंस, ये सारे कंडीशन को आप फिल करते हो, इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इट मीन्स दैट यूअर्स इज़ द अर्थ, ज़मीन तुम्हारे लिए, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, ये ज़मीन तुम्हारी होती होंगी और ये ज़मीन में जो रहने वाली सारी चीज़ें वो तुम्हारी होती होंगी, वो तुम्हारे लिए होगी। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, अगर ऐसा हो रहा है, यानी सारी ज़मीन तुम्हारी हो रही, ज़मीन में रहने वाली सारी चीज़ें तुम्हारी हो रही, इससे बढ़कर एक बात जो होती होंगी वो क्या होगा, डैट यू विल बी अ मैन, तुम एक आदमी बन जाओगे। अच्छा, यहाँ पर आदमी, यू विल बी अ मैन, इट मीन्स डैट अ गुड और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, आप जो है एक इंसान बन जाओगे। अब इंसान अगर बोलते हैं आदमी या औरत, इस तरह से नहीं ले जाएगा, इंसान वो ले होते होंगे जिससे जो है लोगों को फ़ायदा होता होगा। अ ह्यूमन बीइंग, आप जो है वो इस तरह से कहलाते होंगे। दिस वे वी कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट पार्ट और second part, we came to end our poem here.